નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10માં આવતો પાંચમું કાવ્ય કે જેનું નામ છે મીરા કે પદ અને તે લખેલું છે મીરાબાઈએ. તો આજે આપણે આ કાવ્યનો અભ્યાસ કરવાનો છીએ. તો સૌપ્રથમ જે લેખક પરિચય આપેલો છે તે આપણે જાણી લઈએ. આ કાવ્યના લેખક છે મીરાબાઈ. ઉનકા જન્મ सन 1498 और निधन 1563 में. તેમનો જન્મ 1498માં થયેલો અને તેમનું નિધન 1563માં થયેલું. श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था. मीराનો જન્म મેડતા કે જે જોધપુર જિલ્લામાં આવેલું ગામ છે તેની નજીક જે કુગડી નામક જે નાનકડું ગામ છે ત્યાં તેઓનો જન્મ રાવ रतनसिंह राठौरના ઘરે થયેલો. આ તેમના પિતા હતા, राव रतन सिंह राठौर. 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था. 2 વર્ષની ઉંમરે મીરાના દાદા દુદારાવ તેમને મેળતા લઈ જાય છે કારણ કે મીરાની માતાનું અવસાન થયું હતું. દુદારાવ સ્વયં વૈષ્ણવ ભક્ત છે. તેમના દાદા દુદારાવ તે वैष्णव भक्त હતા, भगवान श्री कृष्णना भक्त હતા. उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई અને તેમના જ કારણે, તેમના દાદાના કારણે જ તેના પરિવેશથી હું પ્રભાવરૂપ બની અને મીરા બાળપણથી જ શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિમાં રહેવા લાગ્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિની ઓર એની તરફ એ आकर्षाया था. उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था. आ मीराबाईना लग्न राणा सांगाना ज्येष्ठ पुत्र यानी कि मोटा दीकरा राणा सांगा नामना जे राजा था तेमना मोटा दीकरा कुंवर भोजराज साथे थया था. विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया. विवाहना 7 वर्ष पछी मीराना पति भोजराज ए गुजरी जाए छे, तेमनो स्वर्गवास थई जाए छे, तेमनो मृत्यु थाय छे. अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी. हवे ते तेमनो वधारे पड़तो समय ए सत्संग अने पूजा पाठ में ज वितावा लाग्या हता. पारस्परिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई. પોતાના પરિવાર દ્વારા તેને મળેલી પીડા મીરાને કોણ સતાવે છે તો કે તેના દેર રાણાજી, એ રાણાજી દ્વારા પહોંચાડવામાં આવતી તેમને પીડા યાતનાઓથી કંટાળી અને મીરાબાઈ પેલા વૃંદાવન અને ત્યાંથી પાછા દ્વારકા ચાલ્યા જાય છે, જ્યાં જીવન કા અંતિમ સમય તક રહી. અને ત્યાં દ્વારકામાં તેઓ તેના જીવનના અંતિમ સમય સુધી ત્યાં જ રહ્યા. मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है. मीरा द्वारा लखवामां आवेला पदों ए मीरा पदावलीना नामे प्रकाशित थयेला અને આપણને મળી આવે છે. अपने आराध्य તેમના ભગવાન गिरधर गोपाल, गिरधर એટલે ગિરિને ધારણ કરનાર, પર્વતને ધારણ કરનાર, પર્વતને ઉપાડનાર एवं गोपाल भगवान श्री कृष्ण, उनका आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति उनके भावधाराओं में बह चली है. तेमना भगवान प्रत्ये तेमनी जे भक्ति है, तेना भगवान प्रत्ये जे तेमनो आकर्षण है એ ઘણી બધી ભાવધારાઓમાં તેમના આ પદોમાં જોવા મળી આવે છે. यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीना समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है. અહીં આપેલા પહેલા પદમાં કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની બનેલી મીરા આખા સંસારને છોડી અને સાધુ સંતો સાથે રહી અને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં તે તલ્લીન રહે છે એ વાત કરવામાં આવી છે. और लौकिक मोह का त्याग करके
अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। ते पोताना मानव जीवन તે પોતાના બધા જ મોહ માયા છોડી, આખો સંસાર છોડી, પોતાનો પરિવાર છોડી અને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં તે ડૂબી જાય છે। उनके पद में, उनके दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मीरा ने જ્યારે જ્યારે મુસીબતનો સમય આવે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેને ઉગારી લે છે અને મીરા ત્યારે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિના પદો લખે છે। તો મીરા દ્વારા લખવામાં આવેલું આ શ્રી કૃષ્ણના નામની જે ભક્તિ છે અને શ્રી કૃષ્ણ નામનું જે તેને રત્ન મળ્યું છે, ભક્તિ રત્ન, તેનાથી તેના આનંદનો કોઈ પાર નથી અને તેના આનંદને અભિવ્યક્ત કરવાનો આ બીજા પદમાં તે શ્રી કૃષ્ણનો અને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિનું વર્ણન કરેલું છે કે આ ભક્તિરૂપી જે તેને હીરો મળ્યો છે, આ ભક્તિરૂપી જે તેને દોલત મળી છે, એ દોલત મેળવી અને તેને કેટલો આનંદ થયો છે એ વાત આ બીજા પદમાં મીરા કહે છે। और सदगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। અને પોતાના સદગુરુ દ્વારા તેણે આ સંસારને સમજ્યો અને આ સંસારમાંથી તેણે ભવસાગર પાર કર્યો અને શ્રી કૃષ્ણ તેમને તેમના સદગુરુ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ એ વાત અહીં મીરા કરે છે અને એ વાત કરતાં એ ભાવ વિભોર બની જાય છે। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। અને છેલ્લા પદમાં, ત્રીજા પદમાં શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ માટે, શ્રી કૃષ્ણ માટે મીરાએ આખો સંસાર ત્યાગી દીધો છે અને પોતાના ત્યાગની ચરમસીમા બધું જ ત્યાગી અને તે ગિરધર નાગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિનો સ્વીકાર કરે છે એ વાત ત્રીજા પદમાં કરવામાં આવી છે। તો ચાલો આ ત્રણેય પદોની સમજૂતીમાં હવે આપણે આગળ વધીએ। તેમાં પહેલું પદ, મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी पर्वत यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है कि जिसने गिरी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। हे महानुभाव, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सिवाय बीजू कोई मारू नहीं, एटले ज मैं आ संसारनो त्याग करी दीधो। वह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। लोगों ने उनका कई तरीक़ों से अपमान किया, लोगों ने उनको कोई अपशब्द भी कहे, पर फिर भी मीरा श्री कृष्ण के अलावा, श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा किसी और बात पर ध्यान नहीं देती। इसलिए मीरा कहती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया श्री कृष्ण के लिए। भाई बंधु सगा रिश्तेदार सबको छोड़ दिया और साधुओं के संग मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया और साधुओं के संग बैठते बैठते मैंने अपनी लोक लाज भी खो दी। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, आंसू वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई।
सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। मीरा कहे छे भगत देखा राजी हुई, यानी कि भगवान के भक्त को देखकर मुझे आनंद हुआ और सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आया। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। भगवान श्री कृष्णना विरहમાં જે મારી આંખોમાંથી આંસુ નીકળ્યા છે એના કારણે જ આ પ્રેમ રૂપી મેં જે વેલ છે એ વાવી છે અને મારી આંખના આ આંસુઓથી જ મેં તેમને પાણી પાયું છે। આ પ્રેમ રૂપી જે વેલ છે એ મેં મારા આંસુઓથી સિંચી છે એને। દધીમાંથી ધ્રુત કાઢી લિયો ડાર દઈ છોઈ રાણા વિસ્કો પ્યાલો ભેજ્યો પી મગન હોય। આ पंक्तिમાં मीरा कहे छे, वह कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है। आ वाक्य में मीरा कहे छे कि जेम दधी मथी धृत काढ़ी लियो डाई दर छोई, दधी एटले दही, दही ने वलोवी, दही ने हलावी અને તેમાંથી જે માખણ કાઢી લેવામાં આવે છે, ધૃત એટલે માખણ, ઘી, દધીમાંથી દહીંને મથી, દહીંને હલાવી વલોવી અને માખણ કાઢી લેવામાં આવે છે। ધૃત કાઢી એટલે માખણ કાઢી લેવામાં આવે છે, ઘી કાઢી લેવામાં આવે છે અને પછી જે છાશ વધે છે તેને બાજુમાં મૂકી દેવામાં આવે છે। दधी मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, छाछ ने एक तरफ राखी देवामां आवे छे। वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार सत्व को एकत्र कर लिया है। मैं आ संसार में घणुं बधुं जाणी, आ संसार ने आखो जाणी अने मैं आ संसारना जे प्रेम रत्न छे, आ संसार में जे प्रेम रूपी जे तत्व है एने मैं जाणी लीधुं छे। अने ए कोण छे तो कि भगवान श्री कृष्ण। और सांसारिकता को मैंने किनारे रख दिया है, मैंने अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं, सांसारिकता को एक तरफ रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया अने तेना ए मोकलेला झेरना प्याला ने पण मैं खुशी खुशी पी लीधो हतो। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होणी होय सो होय। हवे तो आ बात पण चारों तरफ फैलाई गई है। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीरा कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है और अब जो होना है वो हो जाए, वो श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ेगी नहीं, जिसको जो करना है वो कर ले। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति हमेशा करती रहेगी। आ वाक्य में आ पद में मीराबाई एवं कहे छे कि जेणे गिरी अर्थात के पर्वत ने ऊंचकी लीधो हतो ते ज श्री कृष्ण मारा जीवननो एकमात्र आधार छे। हे महानुभाव, हे सांभळनारा, मैं समग्र संसार में शोधखोड़ करी, मैं समग्र संसार में घणुं बधुं शोध्युं परंतु श्री कृष्ण सिवाय मारुं बीजुं कोई नथी। परंतु आ संसार में श्री कृष्ण सिवाय मारुं पोतानुं कही शकाय एवुं मने कंई ज मळ्युं नहीं। भगवान श्री कृष्ण सिवाय मारुं कोई नथी। मीरा कहे छे कि भगवान श्री कृष्ण ने माटे मैं मारा भाई बंधु अने बधा सगा संबंधीओने छोड़ी दीधा छे अने साधु संतो पासे बेसी बेसीने लोकलाज पण गुमावी दीधी छे। लोकोए आ साधु संतोनो मैं जे संग लीधो छे एना कारणे लोकोए मने घणी खरी खोटी संभळावी छे, जेने कारणे आ साधुओ साथे बेसी बेसी अने भगवान श्री कृष्णनी भक्ति करवाने कारणे मैं मारी लोकलाज पण खोई दीधी छे। मैं मारा सगा संबंधीओने तो छोड़ी ज दीधा छे पण आ साधुओ साथे भक्ति करी करी तेमनी साथे बेसी बेसी अने मैं मारी लोकलाज पण गुमावी दीधी छे।
સાંસારિક લોકોને જોઈને મને રડવું આવે છે અને ભગવાનના ભક્તોને જોઈને મને આનંદ થાય છે. ગિરધર ગોપાલને માટે સતત વહેતા આંસુરૂપી જળથી મેં પ્રેમની વેલ વાવી છે, તેને ઉછેરી છે, તેને સિંચી છે. આગળ મીરા કહે છે કે જેવી રીતે દહીંને વલોવીને ઘી કાઢ્યા પછી છાશના પાણીને એક બાજુ મૂકી દેવાય છે, તેવી જ રીતે મેં આ ભવસાગરનું મંથન કરી, મારા જીવનનું મંથન કરી અને શ્રી કૃષ્ણ રૂપી સારત્વ એટલે સાર તત્વ એકત્ર કર્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ રૂપી ધન મેં મેળવ્યું છે. મારો આખો સંસાર ત્યાગી મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નામનું જે સાર તત્વ છે તે મેળવ્યું છે અને સાંસારિકતાને બાજુએ મૂકી દીધી છે. મીરા કહે છે કે રાણાએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પરંતુ મેં રાજી ખુશીથી તે પી લીધો. મીરા કહે છે કે હવે તો શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેમના પ્રેમની વાતો ચારે બાજુ ફેલાઈ ચૂકી છે, ચોમેર ફેલાઈ ચૂકી છે, સૌને તેની ખબર પડી ગઈ છે. મીરા કહે છે કે હવે તો ભગવાન સાથે તેમની પ્રીત બંધાઈ ગઈ છે. ભલે જે થવાનું હોય તે થાય, ભલે જેને જે કરવું હોય તે કરી લે, તેને હવે કોઈનો ડર નથી. હવે તો ભગવાન સાથે તેની પ્રીત બંધાઈ ગઈ છે. જેને જે કરવું હોય તે કરી લે, હવે મને કોઈની પણ બીક નથી. હવે બીજા પદની સમજૂતી આપણે મેળવી લે. पायो मैंने राम रतन धन पायो. मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है. लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है. सास कहे कुल नासी रे. मेरी सास એટલે મીરાની સાસુ તે શું કહે છે? સાસ કહે કુલ નાસી રે. मेरी सास मुझे कुल नासिनी कहती है. कूड़नो नाश करवा वाली कुल नासिनी કહે છે. सॉरी, આપણે ત્રીજા ઓલામાં ચાલે કે બીજા. पायोजी मैंने राम रतन धन पायो. मीरा कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी धन प्राप्त कर लिया है. वस्तु अनमोल दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो. શું કહે છે મીરા? वस्तु अनमोल दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो. मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है. यह ईश्वर भक्ति का अनमोल रत्न मैंने अपने सदगुरु के द्वारा पाया है. सदगुरु की मुझ पर कृपा हुई और यह अनमोल रत्न मुझे मिला. मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है. कृष्ण भक्ति का यह अनमोल रत्न मेरे सदगुरु द्वारा मुझे मिला है, उनकी कृपा से मुझे मिला है और मैंने यह अपनायो यानी कि अपना लिया है. अब मैं कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती. जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सब खोवायो. मैंने यह अनमोल रत्न पा लिया है. मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पाली है. जन्म जन्मांतरनी जन्मोनो मैं आ कृष्ण भक्तिનું ધન મને મળ્યું છે. આ ધન લોકોને સહેલાઈથી મળતું નથી. એ ધન આ કૃષ્ણ ભક્તિની પૂંજી મને મળી છે. यह ऐसी पूंजी है जो सबको आसानी से मिलती नहीं. यह जन्म जन्मांतर की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है. खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो. यह पूंजी कैसी है? तो यह पूंजी ऐसी है जो न खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है. इतना ही नहीं, इसमें रोज वृद्धि होती रहती है, यह रोज बढ़ती रहती है. यह कृष्ण भक्ति की पूंजी ऐसी है कि यह खर्चने से कम नहीं होती, न ही चोर कोई उसे चुरा सकता है और दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी होती रहती है. यह पूंजी हमेशा बढ़ती रहती है. सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो. मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी झस गायो. मीरा कहती है कि यह श्री कृष्ण की भक्ति की पूंजी ऐसी है कि जो खर्चने से कम नहीं होती, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता. इतना ही नहीं, इसमें रोज वृद्धि होती रहती है.
मीरा कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर, भक्ति के इस मार्ग पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवनहार એટલે કે नाविक सदगुरु सत की नाव में मैं बैठी हुई हूँ। और इसके नाविक कौन है? तो कि मेरे सदगुरु। मैं इस भक्ति मार्ग पर चल रही हूँ तो यह रास्ता दिखाने वाले कौन है? तो कि मेरे सदगुरु। सत की नाव पर मैं सवार हूँ और खेवनहार है मेरे सदगुरु। संसार रूपी सागर मैंने उनकी कृपा से पार कर लिया है। यह भवसागर मैंने उनकी कृपा से पार किया है और उनकी कृपा से ही मुझे श्री कृष्ण की भक्ति का यह धन प्राप्त हुआ है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गाए। और मीरा अपने यह कृष्ण भक्ति में बहुत खुश है और वह अपने भगवान का गुणगान हमेशा करती रहेगी। मीरा कहती है कि मैंने यह जो दूसरा पद है इसमें मीरा कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। ईश्वर रूपी जो धन है वह मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मेरे सद्गुरु ने कृपा करके यह मार्ग मुझे दिखाया और मैंने यह रास्ता अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह श्री कृष्ण की भक्ति के रूपी यह जो पूंजी है यह मैंने पाई है। अपना सब कुछ खो देने के बाद मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण के जो भक्ति रूपी जो धन है वह मुझे प्राप्त हुआ है। यह ऐसी पूंजी है जो न खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज वृद्धि होती रहती है। मीरा कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर, सच्चाई के इस रास्ते पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार यानी कि नाविक, मैं सच्चाई की नाव पर सवार हूँ। और इस नाव के नाविक कौन है? तो कि मेरे सद्गुरु। मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ तो यह भक्ति का मार्ग दिखाने वाले कौन है? तो कि मेरे गुरु जी। सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। હવે ગુજરાતીમાં આનો ભાવાર્થ આપણે સમજી લઈએ। મીરા कहती है कि मैं ईश्वर रूपी धन प्राप्त કરી લીધું છે। મારા સદ્ગુરુએ મારા પર કૃપા કરી અને આ અણમોલ રત્ન, આ મોંઘું રત્ન મને આપ્યું છે અને મેં આ રત્ન અપનાવી લીધું છે। મારા સદ્ગુરુએ મને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ રૂપી જે ધન આપ્યું છે એ ધન મેં સ્વીકારી લીધું છે, મેં તેને અપનાવી લીધું છે। મેં આ સંસારમાં પોતાની લાજ તજી દીધી છે। ભલે આ સંસાર મને જે કહેવું હોય તે કે, મેં મારી લાજ શરમ છે એ ત્યાગી દીધી છે, ત્યજી દીધી છે અને હવે જન્મ જન્માંતરની આ પૂંજી, જન્મ જન્માંતરનું આ ધન મને પ્રાપ્ત થયું છે। આ એવું ધન છે, આ એવી પૂંજી છે જે ગમે તેટલી ખર્ચ કરીએ પણ ખર્ચ થતી નથી, ઓછી નથી થતી અને જેને કોઈ ચોર ચોરી શકતો નથી। એટલું જ નહીં, એમાં દરરોજ વૃદ્ધિ થતી રહે છે। મીરા કહે છે કે સચ્ચાઈની આ નૌકા ઉપર, આ હોડી પર સવાર થઈને મેં મારા સદ્ગુરુ રૂપી નાવિકની સાથે આ સંસારને મેં પાર કરી લીધો છે। અને મીરા પ્રસન્ન થઈ પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન હંમેશા કરતી રહેશે। ત્રીજું પદ છે તે થોડુંક અઘરું છે તો તેને આપણે શાંતિથી સમજીએ। ત્રીજું પદ, પગ ઘૂંઘરું બાંધ મીરા નાચી રે પગ ઘૂંઘરું। मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति में, भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी खो गई है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नासी रे। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है और सांस कहती है कि मीरा
कुल नासी है, कुल का नाश करने वाली है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीरा की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासिनी है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। जहर का प्याला जो राणा जी ने भेजा था वह मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। यह सब देखकर, मीरा की यह कृष्ण भक्ति देखकर राणा जी वह मीरा को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजते हैं, पर मीरा ने निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी लिया। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीरा कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मैं तो अपने नारायण की, मीरा कहती है कि मैंने तो अपना सब कुछ या अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। हो गई आप ही दासी रे। अब वो अपना सब कुछ और अपने आप को भी सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की दासी बन गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अनिवासी रे। मीरा कहती है कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए, जल्दी से जल्दी आप मुझे दर्शन दीजिए। यह तीसरे पद में मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति में, भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीरा का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीरा की सास तो यह कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाले, उनके कुल का नाश करने वाली कुल नासिनी है। मीरा की सास तो उसे कुल नासिनी कहती है। और यह सब देखकर राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीरा निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीरा कहती है कि उन्होंने अपने आप को और अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीरा कहती है कि हे गिरधरी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दीजिए। હવે ગુજરાતીમાં આનો ભાવાર્થ આપણે સમજી લઈએ। મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની થઈ ગઈ છે। તેઓ પોતાનું બધું જ ભૂલી ગયા છે। તેઓ પોતાના પગમાં ઘૂઘરીઓ બાંધીને નૃત્ય કરે છે, ઘૂઘરાઓ બાંધી અને નાચે છે। લોકો મીરાનો આ રૂપ જોઈને કહે છે કે તેઓ બાવરા થઈ ગયા છે, એટલે કે પાગલ થઈ ગયા છે। મીરાબાઈની સાસુ કહે છે કે તે તો તેમના કુળનો નાશ કરનાર કુળનાશિની છે। આ બધું જોઈને રાણાએ મીરાને મારી નાખવા માટે ઝેરથી ભરેલો પ્યાલો મોકલ્યો, પરંતુ મીરાબાઈ નિશ્ચિંત થઈને તે ઝેર હસતા હસતા પી જાય છે। મીરા કહે છે કે તેમણે સ્વયંને, પોતાનું બધું જ તો તેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સોંપી દીધું છે, પણ પોતાની જાતને પણ, પોતાને પણ તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દીધી છે અને તેઓ તેમની હવે દાસી બની ગઈ છે। મીરાબાઈ કહે છે કે હે ગિરધારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપ અજર અમર છો। હે પ્રભુ, આપ મને શીઘ્ર દર્શન આપો, જલ્દીથી જલ્દી તમે મને દર્શન આપો। તો આ ત્રણ પદોમાં મીરાબાઈની કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। તો આ કાવ્યના અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થો આપેલા છે, તો આપણે એનો પણ અર્થ જાણી લઈએ। પહેલો શબ્દ गिरधर, गिरधर पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल, गायों के पालक या भगवान श्री कृष्ण। दधी यानी कि दही, धृत यानी कि घी। राम रतन धन, राम रूपी रत्न का धन। अमोलक यानी कि अमूल्य। अपनायो यानी कि अपनाया। खेवटिया यानी कि नाव चलाने वाला या नाविक। हरख हरख यानी कि प्रसन्न होकर, खुश होकर। बावरी, बावरी यानी कि पागल। कुलनासी,
कुल का नाश करने वाली। छोई यानी कि छाछ। पूंजी यानी कि धन या संपत्ति। तो અહીંયા આપણો પાંચમા કાવ્યની સમજૂતી પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ. અસ્તુ.